Hello and namaskar traders. Will I get this question asked very frequently is, sir, we notice multiple moving averages on your screen. Why do you use so many moving averages? आप ये तीन चार moving averages क्यों अपने charts पे इस्तेमाल करते हैं? What is the logic rationale behind them? So I thought that it's important how I see this tool, moving averages, and how I have grown as an analyst, as a trader with this particular tool. So, what is a moving average? Moving average क्या है? What are the different types of moving averages और various moving averages के अच्छे खासे combinations क्या क्या होते हैं? This video is not a part of that. अगर आपको ये सब जानना है, सीखना है, I will share the links of the videos where I have spoken about the basics of this. You can find them in the description box. But इस वीडियो में we are going to extend a little further कि let's understand what do I get if I use one moving average, why use that, or two or three or more, what is the logic. So I have in front of us the daily chart of ICICI Bank, ठीक है, और हम लोग यहाँ इंडिकेटर्स में आएंगे, टेक्निकल्स, और स्क्रॉल डाउन करके मूविंग एवरेज पे जाएंगे, और यहाँ पे आई विल क्लिक ऑन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल. Briefly, I'll share this with you that all the different types of moving averages जो है, especially if I compare between simple, weighted, exponential, zero lag, etc. उसमें से exponential I think has a better edge. So for this particular video हम लोग exponential moving average को use करेंगे. So let's say I click one exponential moving average. इसके settings में जाते हैं. एंड लेट्स से इसको लेंथ को लेट्स से 55 बना लेते हैं. 55 पीरियड या 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा, और इसको एक थोड़ा डार्कर कलर दे देते सो दैट इट स्टैंड्स आउट ऑन आवर चार्ट. सो राइट नाउ ऑन आवर चार्ट्स वी हैव वन मूविंग एवरेज, a 55 period exponential moving average. Now the purpose of the moving average is primarily from the point of view of figuring out the structure of the chart or the underlying trend of the chart. मतलब जो price movement है, क्या वो एक trending zone में है या फिर एक trading zone में है, consolidate हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, price के साथ, वो समझने के लिए moving average, which is a lagging indicator, plays a pretty decent role. Now अगर हम लोग एक मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, समथिंग लाइक दिस विच इज अ 55 पीरियड, ये एक स्लाइटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पैरामीटर है, 50 या 55 दिन का. सो दिस इज आइडियल फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिटर्मिनेशन. अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम्स इस्तेमाल करनी चाहिए, 5, 8, 10, 15, समथिंग लाइक दैट. Now the key role of the moving average is first and foremost to figure out whether there is a trend or not. और बाय द वे हम लोग ने ये देखा कि ये मूविंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस से डिटरमाइन होता है. राइट नाउ मैंने इस कैंडलस्टिक चार्ट को, आईसीआईसीआई बैंक का कैंडलस्टिक चार्ट को डेली चार्ट में ट्रांसफर कर दिया, और लाइन चार्ट में ट्रांसफर कर दिया, और ये लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस बताते हैं. इट जस्ट गिव्स अस द क्लोजिंग प्राइस, और इसी क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेके ये मूविंग एवरेज कैलकुलेट होता है. फाइन. सो इसीलिए अ वेरी बेसिक I would say outcome that comes into our mind is जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा ये अप ट्रेंड, और जब भी मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो वो डाउन ट्रेंड, कि अपने मूविंग एवरेज के वैल्यू से वो फिसल के नीचे जा रहा है. सो इट्स शोइंग वीकनेस, या फिर इट हैज गेन्ड एंड इट हैज गॉन अबव इट्स मूविंग एवरेज, सो इट इज शोइंग स्ट्रेंथ. अब वो 55 पीरियड भी हो सकता है, 5 पीरियड भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज द रिलेशन of the position between the price, closing price, and its own exponential moving average. This is simple, very easy, not much difficult at all. But I think there is a flaw here. I think there's a flaw here because क्या just एक दिन के closing के basis पे एक stock का price behavior अचानक से जो डाउन ट्रेंड में था अचानक से एक अप ट्रेंड पकड़ लेता है? Does it make sense
कि कल जो डाउन ट्रेंड में था, जस्ट एक दिन का 2-3% अप मूव के कारण मैं अपना पूरा नज़रिया व्यू फ्रॉम अ डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड शिफ्ट कर जाऊंगा? डू यू रियली थिंक इट वर्क्स दैट वे? आई डोंट थिंक सो. और इसको और थोड़ा रैशनल देने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक अप ट्रेंड में होता क्या है, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन एन अप ट्रेंड. द विलिंगनेस टू बाय इज ग्रेटर देन द विलिंगनेस टू सेल, और इन अदर सिंपलर टर्म्स डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है. खरीदने वाले 2 रुपए ज़्यादा दे के खरीद रहे हैं बिकॉज उनको पता है या उनको लगता है कि 2 दिन बाद ये हायर प्राइस में मिलेगा जिस भाव पे वो बेच के प्रॉफिट कमाएंगे. दैट्स वाई दे पे अ हायर प्राइस. दिस इज कॉल्ड हायर डिमांड एंड दैट्स वाई द प्राइस गोज अप. और ठीक इसका ऑपोजिट इज ऑन द डाउन साइड व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी, फियर, पैनिक. So the willingness to sell will be greater than the willingness to buy and that creates downtrend. इस चार्ट में डाउनट्रेंड जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है और प्राइस नीचे की तरफ आता है. तो ये एक सेंटिमेंटल शिफ्ट भी होता है फ्रॉम अ मार्केट विच इज इन एन अप ट्रेंड विच मूव्स फ्रॉम एन अप ट्रेंड टू अ डाउन ट्रेंड या फिर एक डाउन ट्रेंड से मूविंग टू एन अप ट्रेंड. इसमें एक सेंटिमेंटल शिफ्ट का मेजर रोल प्ले होता है और मुझे नहीं लगता कि जस्ट एक दिन के मूवमेंट के कारण सेंटिमेंटल शिफ्ट हो जाएगा. Just all of a sudden, if the price goes up by 2-3-5%, does not mean that overall sentiment has gone up. इसीलिए, and this is the logical and rational reason why I think that आप one single exponential या कोई भी किस्म के moving average you can use, but to determine the trend whether it's up and down based on price and moving average, I don't think that's a good idea. Doesn't make sense. So the next thing is. Can we use dual moving averages? Well, dual या triple moving average जाने के पहले मैं और एक चीज़ बता दूँ that moving averages also tend to act as good source of support and resistance. Resistance तो तभी होगा जब past historical data है. All time highs पे रहेंगे, अगर रहेगा price तो मुश्किल है resistance निकालना. But as you can see over here, कोई भी आप moving average plot कर लीजिए, वो 5 पीरियड का हो या 55 पीरियड का, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं some way or the other थोड़ा बहुत सपोर्ट या रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा. सो यू कैन यूज समथिंग लाइक अ 55, 34, 5, 10. you'll find that it acts as or it tends to provide some lows and highs. इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा. सो इसीलिए rather than support and resistance which is not that consistent, number one, और जो कि ऑल टाइम हाइज में तो यूज ही नहीं हो सकता, इससे अच्छा हम लोग सिर्फ मूविंग एवरेज को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के ट्रेंड डिटर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ देखते. एंड जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड दैट एक मूविंग एवरेज से इट डजंट मेक सेंस. नाउ कैन वी यूज 2 मूविंग एवरेजेस? चलिए इसको मैं काम करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं लेट्स यूज 12-26. इसको 26 कर देता हूँ, लेट इट स्टे ब्लू. और जो 55 था उसको मैं 1-12 कर देता हूँ और उसको ब्लू से मैं रेड कर देता हूँ. अब हमारे चार्ट्स पे 2 मूविंग एवरेजेस हैं. द रेड वन ओवर हियर इज 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, द ब्लू वन इज 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. इसको डुअल मूविंग एवरेज सिस्टम, क्रॉसओवर सिस्टम हम बुला सकते हैं. नाउ ओवर हियर व्हाट हैपेंस, इट्स स्लाइटली बेटर बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, rather than waiting for the price, हम लोग प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है ना देख के हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं कि शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज अपने लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं. सो वी आर गिविंग प्राइस अ लिटिल बिट मोर टाइम, और थोड़ा वक्त, स्कोप, टाइम दे रहे सो दैट द 2 मूविंग एवरेजेस क्रिस क्रॉसेज ईच अदर, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में क्रॉसओवर बुलाते हैं. शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यहाँ पे हम लोग 12 एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज और द नेक्स्ट मूविंग एवरेज विच इज 26. इन माई ट्रेनिंग्स जनरली आई कॉल देम छोटे मियाँ एंड बड़े मियाँ. लाइक द शॉर्टर वन कटिंग द लॉन्गर वन फ्रॉम बिलो, इट्स अ पॉजिटिव क्रॉस ओवर, और द शॉर्टर वन कटिंग द लॉन्गर वन फ्रॉम अबव, इट्स अ नेगेटिव क्रॉस ओवर. मतलब स्मॉलर मूविंग एवरेज कटिंग द लार्जर मूविंग एवरेज. साइन ऑफ वीकनेस जब ये ऊपर से काटता है और साइन ऑफ स्ट्रेंथ जब ये नीचे से काटता है. इट इज एन इंडिकेशन, इंडिकेटिव कि एक ट्रेंड बन सकता है, आगे जाके हो सकता है एक ट्रेंड बने, राइट, स्लाइटली बेटर ऑफ. बट यहाँ पे भी वही सेम एक लॉजिकल डिस्कनेक्ट रहता है. वो क्या है? सी इफ यू टेक अ लुक एट दिस ICICI बैंक चार्ट,
यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब अगर मैं इस रूल को यूज करता हूँ, इट मीन्स वी हैव स्लिप्ड इनटू अ डाउन ट्रेंड ऑल द वे डाउन हियर, देन ऑल ऑफ अ सडन अ क्रॉसओवर आफ्टर सम टाइम एंड देन वी से इट्स एन अप ट्रेंड. सो बीच का कोई ट्रांजिशन फेज नहीं है, मतलब एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होना, या फिर एक स्टॉक जो अप ट्रेंड में था, इट मूव्स इनटू अ डाउन ट्रेंड, बीच का एक ट्रांजिशन फेज होना चाहिए जहां पे देयर इज काइंड ऑफ अ नो ट्रेंड जोन. डुअल मूविंग एवरेज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं होगा. हमेशा आपका चार्ट आपको बताएगा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, राइट, विच इज फाइन बट इट कैन बी बेटर. इससे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं. देयर इज स्कोप ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ इंप्रूवमेंट हियर. एंड यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे और मल्टीपल मूविंग एवरेजेस जो मैं अपने चार्ट्स में यूज करता हूँ, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का जिक्र करेंगे. बाय द वे, बिफोर वी गो टू ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डुअल मूविंग एवरेज का जो डुअल क्रॉसओवर सिस्टम है वो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है. इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग सिस्टम, बट येस, रेंज बाउंड मार्केट में वो बुरी तरह से पिटेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल मूविंग एवरेजेस, 2 से ज्यादा. एक काम करता हूं, मैं ये 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को डिलीट कर देता हूं. आई गो टू इंडिकेटर्स, I scroll down and I bring my attention to this particular indicator called moving average ribbon. ये रिबन को अगर आप क्लिक करेंगे, ये आपको 4 मूविंग एवरेज एक साथ प्लॉट करने देगा. It will let you plot 4 different moving averages. Let's stick to 3. And if you have attended any of my training programs, you'll see that many a times I talk about the 13, 21, 34. It's just a combination. मैं आपको दिखाता हूँ. So when we bring 13, 21 and 34, and I generally color them by RGB so that you remember R, G and B, red, green and blue. यहाँ पे आके 4th को deselect कर देते हैं and let's thicken them a little bit. They will stand out on our charts. साफ दिखेगा. and ये रहा आपका by the way, इसको exponential होना चाहिए, सब SMA होगा. हाँ, see, जब आप मल्टीपल मूविंग एवरेजेस प्लॉट करेंगे ना, इट्स ऑलवेज गुड आप एक्सपोनेंशियल यूज करें. उसमें आपको एक नेचर दिखेगा, एक रिदम दिखेगा मूविंग एवरेज. अगर आप एक्सपोनेंशियल और सिंपल का एक मिली भगत काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक मूविंग एवरेज का जो रिदम है वो दूसरे मूविंग एवरेज के रिदम के साथ मैच नहीं होगा. यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है दैट वी हैव अ नाइस रिदम ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड. नाउ व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज द पोजीशनिंग ऑफ द मूविंग एवरेज. When the moving averages are kind of one on top of the other like this, nice uptrend. When it's all jumbled up, no trend. नीचे की तरफ जब proper order मिल जाता है, it's a downtrend. इससे होता क्या है that we are allowing the price some time, scope, room कि वो अपना trend determine कर ले. So अगर हम ICICI बैंक के current stage पे अगर focus करें तो हमें साफ दिख रहा है कि 13, 21, 34 यहाँ से एक के ऊपर एक था, नाइस RGB कॉम्बिनेशन. यहाँ जाके वो 13, 21 के नीचे फिसल गया, मतलब यहाँ पे ये अप ट्रेंड में नहीं है, अभी तक डाउन ट्रेंड बना नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको हाथ नहीं देंगे. हो सकता है ये एक रेंज बाउंड माहौल में रहे. अगर नीचे की तरफ खुल जाता है तो डाउन ट्रेंड, अगर फिर से ऊपर की तरफ खुल जाता है तो अप ट्रेंड, और जिस तरफ ट्रेंड बनता है उस तरफ मैं ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, आइदर फ्रॉम द सेम टाइम फ्रेम या फिर लोअर टाइम फ्रेम्स. वो तो आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है. बट प्राइस में ट्रेंड हो रहा है या नहीं, वेदर द प्राइस इज एक्चुअली ट्रेंडिंग और नॉट, आई थिंक अगर आप 3 या 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करें, इट विल गिव यू अ नाइस लुक एंड फील, अ नाइस फ्लो ऑफ द सिस्टम. बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स, मैंने यहाँ पे 13, 21, 34 इस्तेमाल किया. यू कैन यूज एनीथिंग. आप 5, 10, 20, 5, 8, 13 कुछ भी कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो. देयर इज नथिंग लाइक इट. यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं है. अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आई वुड रिक्वेस्ट यूज अ स्मॉलर कॉम्बिनेशन, 5, 10, 20, 5, 8, 13 इफ यू यूजिंग फिबोनाची नंबर्स. बट ये ध्यान में रखिएगा कि एक नंबर के ऊपर जो दूसरा नंबर है, जो पैरामीटर, जो मल्टीप्लायर है, वो सेम मल्टीप्लायर इस्तेमाल कीजिएगा. Mr. Daryl Guppy has done some enormous work in terms of this exponential moving and multiple moving averages. मैं पर्सनली उनके काम, उनके बुक्स उतनी डिटेल में आई हैव नॉट रेड. आई हैव सीन फ्यू ऑफ हिज चार्ट्स एंड मुझे देख के समझ में आ रहा है कि उनका माइंडसेट अप्रोच क्या है. एसेंशियली टू फिगर आउट अ गुड
strong trend and try to trade in the direction of the trend. So here this is my explanation, answer, logic, rationale to why I use multiple moving averages on my charts. I hope you find this useful enough. Do let me know your thoughts, suggestions, feedback. Till then, take care of yourselves, trade well and trade wise.